Thank you so very much, People's Perfect and Tech Titan, for providing us the opportunity to meet and greet, to learn from each other, and definitely it's better together for sure. And I really love this line, "It's better together." It shows the vision of the entire company. So without wasting time, I would first be introducing our panel today with us. A small introduction about my own self. I am Annie Arslan, heading HR and Sustainability at Artistic Milliners. When it comes to Artistic Milliner is a global company and the top leader in terms of denim manufacturing. So we do have our global footprint. The idea of being in HR is really beautiful, and I feel that all of us, like I'm sure you guys belong to different organization, but the idea of being here and being in HR is exactly same. It's about people. It's about taking care of them. It's about well-being. It's about driving these strategies that can help organization and of course people to grow together. So formally starting, Bismillahirrahmanirrahim, we do have with us सबसे पहले साद मजीद. Yes, thank you for KFC today and always. It's always delicious, pocket friendly, and हम deals बहुत ज़्यादा enjoy करते हैं, and we want more such things. Thank you so much. I don't know if I'm audible to the audience or not, but मैं वो देख रहा था कि KFC का जैसे ही नाम आया तो लोग थोड़ा सा मुस्कुराना शुरू हो गए. So which is a good sign, huh? Yes, और भूख थोड़ी ज़्यादा लगने लगी. So I am sure that we are going to have a good meal as always. So now alongside Saad Majid, who is head of HRBP at KFC, we do have with us Miss Shazia, and she is heading HR in Halal Foods. I would really want you to, introduce yourself a bit more in detail to the audience. All right, now, assalamu alaikum everyone. So, my name is Shazia Shahbaz. I'm currently working as General Manager HR and IR at Halal Foods. So, basically, these are three companies that we serve. Halal Foods के बारे में सबको पता ही है, हिलाल की डिंग डोंग सब लोग खा रहे हैं, सबने खा के कहीं बड़े हुए हैं. और इसके अलावा we do have another company that's Shalimar Foods. तो उनकी भी flagship तुलसी है, आप सबको ने खाई भी होगी. And the third company is Halal Care. तो वो भी it's a company that Bold का अगर आपने perfume या वो देखा होगा तो that's also part of the company. And we do have the fourth company, that's Domino's. That doesn't come under my scope, but that's a part of the group. और मेरा अगर experience almost close to 20 years होने वाला है, and I've been part of multinationals, local organization, दोनों तरह का experience Allah Ta'ala has been very kind to give me, and FMCG and pharmaceutical mainly. Mashallah, mashallah, such a great journey, and good to hear from you. Then we have, mashallah, with us Amir Ali, and he is heading organizational development in Dalda Foods. Yeah. We would really love to hear from you about you. Okay, so my name is Amir Ali. I've done my master's from Greenwich, and overall I have around 16 years of experience, and that includes 10 years with my current organization, that is Dalda Foods. Over there, I joined as an assistant manager in the shared services, and I have, transitioned through multiple roles of HRBP for the technical side, for the sales and commercial side, and currently I'm looking after the assignment of organization development. Perfect. So alongside of you, we do have with us Sheikh Abdul Azim. He is Senior Manager HR at EBM. We would really love to hear from you too, sir. Perfect. So we formally started with the question and answers from the panel. तो सबसे पहला मेरा opening question, and I'm sure अच्छा हुआ ये कि जब से हमने अपना flyer LinkedIn पे लगाया तो मुझे ना questions आने लगे कि that we want to talk about this and I would love to hear this. So I'm sure from the audience the voices कि सबसे बड़ा HR challenge, right, आपकी companies में as of now क्या है? The biggest one. It is about talent, it is about economy drive, it is about the rising fuel prices. Which area the HR is truly struggling? So we start with Sadia. So I think particularly if we talk about the HR challenges, I mean there are so many.
लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है उससे पहले ऑडियंस से, तो ये जो चैलेंजेस होते हैं ये इनका होना अच्छा है या नहीं? Yes, because ये challenges हैं, so these challenges actually make us, you know, push our boundaries to be more creative. So सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अगर challenge है तो अच्छी बात है. So I think, so one of the biggest challenges that we are facing right now is basically, I'm sure audience में ये बहुत सारे बैठे होंगे, that is basically Gen Z. अच्छा वो challenge क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, because जो Gen Z है that is different from the millennials जो हम लोग हैं, and of course from baby boomers. So उनको understand करना that has become very difficult for us. मैं आपको थोड़ा सा context बताता हूँ KFC का. So KFC is divided into two parts. One is basically the corporate block and another one is basically the field जो restaurant में आप लोगों को लोग नज़र आते हैं. So हमने recently एक survey भी किया. So more than 75% of the population that work for KFC is basically Gen Z. So which means के जो millennials हैं वो बेचारे थोड़े से ज़रा कम होते हैं. जा रहे हैं। So और हमने जब आपके पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स Gen Z की होती है, so obviously आपने ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे लेके चलना होता है. And by the way, KFC is one of the fastest growing organization in Pakistan. So we thought कि ये जो 25% है, rather than कि हम अपनी चीज़ों को implement कराएं इनके ऊपर, let's understand them. Yeah. हम उनको understand करें कि वो basically उनको किस तरह के ways of working पसंद है, वो किस तरह काम करना चाहते हैं. So हमने different surveys की अपने global teams के साथ. जो सरप्राइजिंगली दो तीन चीज़ें सामने आई, वो एक तो उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दे वांट स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ फॉर देम, राइट? Yeah. सो Everything in black and white. Everything documented. Yes, everything should you be know, yeah. in black and white. Yeah. सो हमें ये तो पता चला. सो नंबर वन कि उनको बड़े करियर स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ उनको नज़र आना चाहिए कि यार अगर लेट्स से आज मैं ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता हूँ, सो डाउन द लाइन आफ्टर 5 years मैं किस पोजीशन पे जा सकता हूँ. सो नंबर वन ये चीज़ थी. दूसरी चीज़ ये कि सो दे वर अ बिट रिलक्टेंट टू अटेंड दीज डेवलपमेंटल इंटरवेंशंस जो होती है ना, जो एक दिन की होती है, 9 घंटे आप आएँ और आप ट्रेनिंग करें और सारा कुछ. सो हमें थ्रू दैट सर्वे हमें पता चला कि यार ये इतना ज़्यादा टाइम एक जगह पे नहीं गुजार सकते. सो यू हैव टू हैव दीज इंटरवेंशंस, यू हैव टू रिड्यूस द टाइम ऑफ दीज इंटरवेंशंस टू मे बी 2 hours or 3 hours. उनका attention span is Exactly. अब I don't know वो अच्छा है Exactly. या बुरा है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, but this is what exactly they want. As an organization हमने क्या किया? So we worked with our global teams and with local teams. हमने structured career frameworks introduce किए KFC पाकिस्तान में. So if you go to any of the KFC outlets, you can actually see हमने बड़े खूबसूरत boards बनाए हुए कि let's say अगर if you join us as a team member today, so down the line after 3 years, आप किस position पे जा सकते हैं. So it's not only the career journey that we have defined. It's basically किस step के ऊपर what are the interventions that you will be needing, right? What skill set do you require beautiful. from one position to another position. और फिर इसी तरीके से हमने सारे tools, interventions सारा कुछ किया. So we have partnered with School of Leadership. I'm sure कि अगर आप लोगों को School of Leadership के बारे में पता होगा. So their focus is also on youth. Yes. So हमने ये decide किया कि let's partner with them and let's identify कि कौन सा skill set है that is basically a modern day skill set. So हमने जब उनके साथ partner किया, so we have हमने कोई 6 इस तरह के skill set हमने TNA किया, हमने वो skill set हमने लेकर आए. We have created modules for them. And the another challenge was basically कि अब modules तो आपने बना लिए, content तो आपने बना लिए, अब हम उसको उसकी methodology क्या होगी, उसकी delivery क्या होगी. सो रिसेंटली हमने उनके साथ पार्टनर किया. हमने फ्यूचर लीडर्स कॉन्फ्रेंस एक की थी जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम आई थिंक पाकिस्तान में तो नहीं कहूँगा बट सो लेगो सीरीज़ के ऊपर हमने एक इंटरवेंशन कराई अपने लोगों के लिए. सो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने स्ट्रक्चर्ड करियर प्रोग्रेशन पाथ इंट्रोड्यूस कराए. एंड बाय द वे हमारा टर्नओवर अगर मैं आपको बताऊँ, सो दैट वाज ह्यूज. सरप्राइजिंगली जो लोग फूड रिटेल इंडस्ट्री से वो नहीं है, उनके लिए सरप्राइजिंगली हुआ कि यार हमारा जो टर्नओवर था दैट वाज मोर देन 70%. बट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दीज स्ट्रक्चर्ड करियर फ्रेमवर्क्स एंड दीज Structured later developmental yeah. interventions, so we have significantly reduced the turnover as well. And secondly, of course, Gen Z की ये need थी, so we actually addressed through these interventions
and we have reduced a significant amount of turnover in the organization. Perfect. So हम इसी बात को थोड़ा जेंसी को ही आगे लेके चलते हैं. Of course, we would love to take the challenge what you feel that your organization has. अब अगर अभी हम ये बात करें, so I was picking the word कि when you show them the ladder that you know after 3 years if you graduate from this skill to this skill there is a potential career path and the position you will get in the organization. My devilish question on that part, as in coming from the Gen Z mind. What is the guarantee? Like, I mean, how easy it is to convince them, number one, ठीक? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, being an HR fellow, मुझे ऐसा लगता है कि उनको convince करने के लिए भी you need as a leader to learn a lot, because they do ask so many questions. Right? So do you really feel it, or they get easily convinced कि हाँ ये ladder है, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, and then you can easily take them the way you want to? No, I think it's a really devilish question. But you are really right. I think Annie, you are spot on. और इसमें मेरा take है, I think आपके सवाल में इसका जवाब भी है. So it's not that easy to convince them. Reason behind, मुझे लगता है 2 इसके element हैं. पहली बात तो ये जो what you said already, that's the art that we need to learn. क्योंकि हम लोगों ने वो सब बात करते हैं listening skills की ना, तो listening हम कहते हैं कि जी deep listening हमें आनी चाहिए. Yes. एंड देन डीप लिसनिंग तब आती है, एंड उसका जो दूसरा पार्ट है हमें स्मार्ट क्वेश्चंस करने भी आने चाहिए ना, तो वो फिर बहुत आगे बहस चली जाएगी. लेकिन द वे वी हैव ग्रोन अप, तो हमने बहुत ज़्यादा स्मार्ट क्वेश्चंस करने की हमारे पास प्रेमिसेस कम रहा ड्यूरिंग दैट टाइम ना. मैं जनरली बात कर रही हूँ एज एन इंडिविजुअल नहीं. तो वो जो स्मार्ट क्वेश्चंस करना और उसके जवाब के लिए अगले का तैयार होना, वो इज़ नॉट दैट फ्रेमवर्क दैट वाज ऑलरेडी अवेलेबल. तो अभी मैं अपनी बोर्ड को भी रिसेंटली आई वाज प्रेजेंटिंग इट. अच्छा, आपकी तरह का नंबर हमारे यहाँ नहीं है, बट आई हैव सीन वेरी सिग्निफिकेंट रेज. हमारे तकरीबन इस साल में 4% का रेज आया है जनरेशन मिलेनियल से जो जेन ज़ी में चले गए. मैं उसको अभी से ट्रैक इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ग्लोबल स्टडी ये कहती है कि जी 2030 तक आपके 27% तक जेन ज़ी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे. तो माय बोर्ड मेंबर आज दिस क्वेश्चन कि जी आपको क्या फिक्र है क्यों आप इसको बता रही है ना, व्हाट डज इट से. तो मैंने इनसे ये कहा कि मुझे ये नजर आ रहा है कि जो ये जब सवाल करते हैं तो हमारे लोग उसके लिए तैयार नहीं है. एंड ही वेरी राइटली सेड कि भाई तो इसका मतलब है इनको तो नहीं सिखाना तो पहले के लोगों को. Absolutely. This So, is exactly what I हाँ. mean to point out. Yeah. Okay, we are talking about Gen Z and we are taking them to one space to other. So I tell you from my own experience, one of our colleagues, he came to my room and लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो आए अपनी तैयारी के लिए थे कि कल मुझे एक फीडबैक देना है टू माई कोलीग डाउन द लाइन एंड आई रियली वांट टू लर्न फ्रॉम यू बिकॉज यू स्पीक जेंटली, सो आई रियली नीड टू गेट सम वोकैबुलरी कि मुझे उसे टफ फीडबैक कैसे देना है. सो यू वुड अग्री टू मी कि फीडबैक देना एक बात है. हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर क्या जो चीज़ मिस होती है कि हम फीडबैक को संभाल के रखते हैं और जब किसी को प्रमोशन नहीं देते तो उसको वो पूरा खत दे देते हैं कि दीज आर द रीजंस फॉर व्हाट यू आर नॉट बीइंग प्रमोटेड, और हम भागते हैं कॉन्फ्लिक्ट वाली डिस्कशन से बिकॉज वी नो दैट प्रोबेबली इंटरनली वी आर आवरसेल्फ नॉट रेडी एज एन लीडर्स. सो आपको क्या लगता है कि अदर देन जेन ज़ी व्हाट इज़ द चैलेंज द ऑर्गेनाइजेशन योर ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग? अच्छा सही, बस मैं उसको क्लोज कर दूँ उस लूप को. तो फिर हमने यही बात की कि हमने मल्टी जनरेशनल वर्कफोर्स जो है ना उस थॉट में आना है कि वी आर वर्किंग विद मल्टी जनरेशन. क्योंकि इसका एक ग्रुप ये है, उन्होंने कहा कि ठीक है जब हम भी तो आए थे तो जेन एक्स था हमसे पहले, तो क्या फिर क्या मसला, तो वही तो आ रही है हमेशा से एजल से ऐसा ही है. तो ऐसे द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर ओपन टू आस्क क्वेश्चंस. So the other part of the table needs to be ready to answer that and in their own language connect करना है. अच्छा, दूसरा हम क्योंकि पार्ट ऑफ बीइंग FMCG एज वी ऑल एंड ख़ास तौर से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सो ये जो आपके प्रेसिंग इश्यूज हैं इकोनॉमिक की हमें डेफिनेटली हिट करते हैं. क्योंकि हम इस ट्रैक में हैं इस वक्त कि भाई सप्लाईज भी चाहिए. हमारा बहुत सारा जो मटेरियल है वो इम्पोर्टेड होता है, तो वो नहीं अगर आ पा रहा है तो हमें डेफिनेटली वहाँ से हमारी कॉस्ट पड़ रही है, फ्यूल के प्राइस, हर चीज़ दैट्स हिटिंग द बिजनेस. तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान स्पेशली, हर जगह आई थिंक हो रही है, लेकिन हमारे भी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पीपल वांट लिटिल बिट ऑर्गेनाइजेशन वांट बिट रिलीफ, लेकिन ऑन द अदर पार्ट लोग हैं, ठीक है, द पीपल ऑल्सो वांट देयर रिलीफ टू. तो वो एक समझ लें कि काइंड ऑफ ट्रैकिंग है जो हम जब से ये वॉर वाला मामला शुरू हुआ था तो इस वक्त हम बहुत एक्टिवली उसको ट्रैक कर रहे हैं. वी एक्चुअली मेड अ टीम जिसको हमने कहा प्रोजेक्ट रेजिलियंस, हमने उसको कहा है. तो वी ऑल द टीम लीड्स आर देयर.
हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने सुना होगा इंडस्ट्री में हो रहा है कि कहीं आप कुछ फ्यूल कट लगा रहे हैं, साथ में वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सो वी आर ट्राइंग आवर हार्ड, वी आर बेस्ट कि अभी हम उस लेवल तक ना जाएं कि वी आर कटिंग एनीथिंग फॉर द पीपल. But yes, that's an issue, that's a pressing issue and we are actually tracking it very actively कि हम उसको साथ meet कर सकें. Alhamdulillah, until now we are doing good, but yeah, this is something that's... All right, so we'll talk about more on that side and how, as an HR, knowing the business acumen, we can promote, good policies and procedures and strategies. Yeah. But coming first on that, the Gen Z wala side and this side of my panelist, I really want to ask from you people कि आपको ज़्यादा वक्त किसको समझाने में लगता है, जेन ज़ी को या उन लीडर्स को जो उनको डील कर रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन कि एक चीज़ जो एज एन एचआर हम सब बहुत सुनते हैं, और जब तक मैंने प्रोडक्शन में काम किया तो शायद मैं भी उन्हीं लोगों में से थी जो ये बात करते हैं कि यार एचआर के लिए सब आसान है, दे जस्ट ओनली टॉक, राइट? दे डोंट हैव द कॉस्ट प्रेशर, दे डोंट हैव द प्रोडक्शन डेडलाइंस, एंड दे जस्ट व्हाट दे डू, दे सिट इन अ गुड एसी रूम, दे मेक द पॉलिसीज एंड दे फील इट इज़ डन. मासरत, बट ये वो चीज़ें हैं जो हम सब ने अलग अलग जगहों पे, and it's not easy to convince production fellows especially. So when a complaint comes from a director operation that we have to fire the fellow and you say कि यार आपने performance review में इसको 5 out of 5 numbers दिए हैं and that is not rightful thing you're doing, then they say you don't know. So if you don't know business, you can't. So my first question is, which part of either Gen Z or the leaders is tough to get convinced? Number one. Number two, do you think that Gen Z is ready to learn business as harder as we did in our times? So these are the two questions on this side of the panel. Okay, so I would like to answer the first question initially. I think कि जो ज़्यादा चेंज की ज़रूरत है वो आती है सीनियर मैनेजमेंट को या दूसरी जनरेशन्स को समझाने में. First of all, we need to teach them how to unlearn things that they have been doing since many years. First, they need to unlearn that and build new skills and competencies. क्योंकि देखें, change is constant. It's inevitable. आज नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, there is a workforce that coming towards them and they have to, live up to their expectation. अच्छा, हमने अपनी मैनेजमेंट के साथ 2 चीज़ें की. पहली तो उनको एक ट्रेनिंग करवाई, whom why चीज़, राइट, उसके ऊपर, ताकि उनको पता चल सके कि यार इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. दूसरी चीज़ एक की थी कि हमने एक डायलॉग करवाया इन दोनों ऑडियंस के बीच में, काइंड ऑफ डायलॉग, काइंड ऑफ अ फोकस ग्रुप टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ बोथ द साइड्स. व्हाट आर द जेन जीज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम एंड व्हाट द मिलेनियल्स एंड द अदर जनरेशंस आर एक्सपेक्टिंग. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ये थी कि हमने सीनियर मैनेजमेंट को थोड़ा सा ये भी समझाया पूरा एम्प्लॉय लाइफ साइकिल दिखा के कि इन एवरी स्टेज ऑफ द हायरिंग टू सेपरेशन, लाइन मैनेजर रिमेन्स कांस्टेंट. तो टर्नओवर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट बिकॉज ऑफ एचआर पे सही नहीं कर रहा, तो उनको ये समझाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आई थिंक कि वी हैव बीन सक्सेसफुल एंड द टर्नओवर इज इम्प्रूविंग एट आवर साइड. Right. So yeah, you want to hear from So before I answer your question, I will come up with your first question. So my question to the audience is, what is healthy attrition rate in one average attrition rate in your organization? or any organization, what yeah. is the healthy, like कितना टर्नओवर हो तो हम कहें कि यार ये Yeah, हेल्दी that's है और ये healthy है. होना भी चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए. Depends. Actually, It depends, obviously, that varies from position to position, Industry के obviously. हिसाब से होता है. But on an average, I believe 15% is very healthy attrition rate, and we are standing at 8% at this point in time. So that's really healthy. But why it is healthy? I believe it's all about the culture. You mentioned about the Gen Z. I believe organization is very adaptable. The persons working in organizations are very adaptable, so we are not facing this challenge at this point in time, because on an average, I was doing a data analysis few weeks back, so I saw on an average, once an employee joins, so he stays with EBM for at least 5 years. So that's the advantage I think we have. But the most challenge we are facing at this point in time is brain drain. I think we all agree with that. Out of, for example, 8%, there are 60% employees who left the country. So one aspect I just wanted to discuss about that.
फिर you mentioned about the discussion कि कौन कितना करता है. So I mentioned कि in our organization ये हमें challenge as such face नहीं हो रहा. Gen Zs are contributing a lot. Our empty retention rate is very high. It's standing at around 80% at this year, and it was 50% last year. So we believe we are working a lot on the culture because you mentioned, I think someone mentioned that about the management. So culture drives from the top management. Yeah. So we have alhamdulillah very So good culture. हम कल्चर ही की बात को थोड़ा सा साथ की तरफ आगे लेके जाते हैं और पहला क्वेश्चन ऑफ कोर्स यू आर विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सो आपने सारे you know like shifts देखे हैं and it's not about your organization only because you meet people in the social cycle and you hear a lot of things. When we talk about culture, how as an HR, we all are sitting here to learn, how as an HR you feel that one individual can bring a change, or whenever you go to any organization, you join an organization with a lot of passion. You want to move the rocks, right? And then you started believing that it is not movable, right? So when we, as an HR, हमें कौन से primary pillars हैं जिसको सबसे पहले target करना चाहिए if we want to make a change in the culture? So talking about culture, I think so culture बनता कैसे है? Yeah. So we need to understand that first. So obviously अगर हम पाकिस्तान को भी देखें तो पाकिस्तान की भी certain values हैं. Yeah. So when you see people practicing those values, so आपको वो culture नज़र आना शुरू हो जाता है. And same is the case with organizations as well. So organization की अपनी values होती हैं. वो values दीवारों पे लिखी होती हैं, आपको हर organization में नज़र आती हैं. Very true. But important ये है कि as HR हमारी responsibility ये होनी चाहिए to make employees understand the value of these values, right? कि वो कितनी important है. And based on that, KFC हम क्या करते हैं? So we have basically quarterly recognition program, which is basically based on the values that we have. Beautiful. So for example, we have 6 values. So if Saad is, let's say work as team is one of our values. So if I exhibit work as team value throughout the Amazing. quarter. Amazing. So my line manager, not only my line manager, but anybody who sees that he is a great team player, he can actually Yeah. nominate me to that award. Amazing. So I think important for HR is to incorporate those values in true letter and spirit rather And than add interventions to promote it. So it's just not on the walls, but through intervention you are living it again and again. Exactly. And you can actually exhibit all these values day in, day out. So for example, recognition is one of our values. Yeah. So if somebody is, मैं बड़े soft उसके ऊपर बात करूँ, Yeah. अगर किसी ने कोई अच्छे कपड़े ये पहने हुए ना, so we have to recognize that person. यार आज बड़े ज़बरदस्त लग रहे हो तुम. Zabardast, yes. अगर कोई अच्छा काम कर लेता from so basically हमारी organization के अंदर हम ये कहते हैं कि we find ways to recognize people. Yeah. So हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सा ऐसा employee है जो कि हमारी value को exhibit करे. So the moment we see this, हम उसको recognize करते हैं then and there. हम wait नहीं कर रहे होते कि यार साल के आखिर में recognize करेंगे, but Beautiful. we recognize that employee then and there. Beautiful. And that's the recognition model quarterly you have done. Exactly. So when Perfect. people from the outside the organization, जब वो लोग देखते हैं कि यार इस organization के अंदर ये सारी चीजें हो रही है, so people get impressed, and this is that is how you actually attract external talent as well. Amazing. Yeah. तो जब भी मैं शाज़िया की तरफ आती हूँ कुछ devilish side मेरे अंदर जाग काम जाती है। मज़ीद. So as you are looking after the IR side, probably that is the positive intent asking this. As he said, and we all in the organizations are developing the interventions to live the values and make people live the values too. Now coming from the IR angle, you must have seen कि हमारी भी सिलेक्शन में कोई गलतियाँ हो जाती हैं. कुछ लोग आ जाते हैं कल्चर में जो उस तरह से फिट नहीं होते जिस तरह हमने probably at the time of interview सोचा होता है. Now when I say fit नहीं होते, I don't talk about their professional capacity of work. I talk about the soft side, the culture we are hitting right now. Now ऐसे सारे cases को what should HR do? Firing should be the ideology, development should be the ideology, or what else, right? And if it is about the warnings, how many warnings it should be? अच्छा ये थोड़ा लीगल क्वेश्चन हो गया. अच्छा चलिए मैं खरी इस बात पे कहूँ. I think the example you gave ये जो values वाला है, Yeah. तो I have been doing this in मतलब एक पूरी कंपनी का फैब्रिक चेंज हो जाता है. We also do the similar thing और जिसकी वजह से हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है going forward लोगों के बिहेवियर चेंज करने में. So IR side पे I think
Okay, so there are two parts of it. Yeah. So अगर हम बात करते हैं कि Shazia won't like me anymore. She said, like, Eddie, you are also asking all the devilish No, no, questions. no, I but- like you anyway. तो द थिंग इज कि हम जब किसी को भी हायर करते हैं, गलती तो आई थिंक किसी भी जगह हो सकती है, क्योंकि इसीलिए आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन में मैकेनिज्म होता है 3 महीने का. इफ द पर्सन डजंट फाइंड गुड तो दे कैन लीव. अगर ऑर्गेनाइजेशन को समझ नहीं आता तो हम कर सकते हैं. सो इफ यू बिकॉज यू स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट कि परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, इट्स अबाउट द लाइक सॉफ्टवेयर साइड बिहेवियर. हाँ thing that is impacting your culture. या सो आई थिंक एक चीज़ पर हम सारे एग्री करते हैं कि हमेशा वो कहते हैं ना कि व्हाट एक्चुअली मैंने कहीं कोड भी पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं आ रहा. इट्स नॉट द परफॉर्मेंस एक्चुअली दैट हिट्स मे बी डिफाइंस द पर्सन. परफॉर्मेंस की पार्ट होता है, टेक्निकल पार्ट होता है, लेकिन आपका बिहेवियर इज परफॉर्मेंस इज आउटकम ऑफ दैट बिहेवियर, राइट. तो अगर किसी बिहेवियर का थोड़ा चैलेंज है, जो बिहेवियर में नॉन कंप्लायंस हो सकती है, एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ मे बी द काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग, मे बी टॉक्सिसिटी और समथिंग, तो आप सबसे पहले तो पहली चीज़ होती है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है. तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या परफॉर्मेंस का टेक्निकल कॉम्पिटेंसी का इशू. आई थिंक पहली चीज़ हमें बहुत दफ़ा क्या होता है, कभी कभी सॉरी टू से दैट बट कभी कभी एज अ मैनेजर हम ये भी करते हैं, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही होती है टीम मेंबर की और हम काम नहीं करना चाहते, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो कभी कभी उसका लेबल कर देते हैं कि ठीक है. तो वो चीज़ अगर सॉर्ट हो गई है कि हाँ जी परफॉर्मेंस का टेक्निकल इशू नहीं है, इट्स लाइक एक्चुअली द बिहेवियर इशू, तो उसके बाद आई थिंक आप थोड़ा टाइम ज़रूर देते हैं. देन यू वो सिंपल सा स्टेप है, सबसे पहले आप काउंसलिंग करते हैं, यू जस्ट टेल दैट पर्सन कि भी ये चीज़ें सही करनी है. सेकेंड आपने कहा महीने 2 महीने का टाइम दिया, एंड देन it also determines through by the level of severity of that behavior ना, वो कितना सीवियर है, देन वो शख्स किस लेवल पे है, कितना उनका इम्पैक्ट है. अगर सीनियर पोजीशन पे डेफिनेटली दैट्स किलिंग थिंग अगर बिहेवियर में कोई चैलेंज है. उसके बाद आप आ जाता है कि जी सिंपल हम जो करते हैं, जो बहुत फेमस डॉक्यूमेंट होता है, इसका हम कहते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान होता है, ठीक है, वो आप बनाते हैं. उससे पहले आप कोशिश करते हैं चलो डेवलपमेंट पे बात कर लें, डेवलपमेंट पे नहीं काम किया आप PIP के ऊपर आ जाते हैं, PIP पे काम नहीं किया तो देन आई थिंक यू गिव दैट क्वार्टर टाइम. आपका काम एज एन HR ये है कि दैट डिस्कशन शुड हैपन, दैट द थिंग्स जो लिखी गई हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, सही हो, compliance उनका हो. ट्रैक, Yeah, उनका कंप्लायंस. एंड द लास्ट थिंग दैट यू सेड वार्निंग वाली, तो वार्निंग इज लाइक वो तो फिर ये है कि सिवियरिटी लेवल आ गया, कंप्लायंस ही नहीं हो रही फॉर एग्जांपल, तो आपने एक वार्निंग दी, दूसरी दी, वो तो फिर एक लीगल तरीका है ना कि जी आपको 3 वार्निंग्स देनी होती है, देन यू डू. लेकिन वो सारा कुछ तब होता है जब बाकी द नेचर ऑफ इंसिडेंट क्या है, बिहेवियर किस तरह का है. तो Yeah, that's how true. So thank you for adding it now towards this side of the panel. When we talk about the performance, as she mentioned, of course, companies do talk about numbers. They love seeing numbers, and they're more inclined in all, obviously, the profits and everything else. But when it comes to culture, it's really good to talk about culture. We love talking it about, but living it on the leadership level is equally of a good, it's of a high value. And at times we experience, I don't talk about your organization, I'm just talking about experiences, general experiences in the room. एक सवाल जो मैं जब भी टाउन हॉल्स करती हूँ तो मुझे बहुत सुनने में मिलता है, एंड आई लव दिस क्वेश्चन, कि अगर मसला ही हमें HR से है तो अब हम कहाँ जाएं? If they are the one who are not doing the compliances or whatever they write in the policy, and I'm sorry, I'm just asking all the right questions which were there in the inbox as well. कि अगर let's suppose for an example, ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करते हैं उनको लगता है कि जितनी भी एग्जाम्शंस है ना ये HR क्रिएट करता है, दो की राइट बात थॉट नहीं है, बट facilitation to any kind of facilitation. So if they are not happy with the way HR is performing, how as an individual they should take it, to whom they should take it. If CEO is not the person who is meeting or she is meeting directly to the audience, and HR is always the channel, so how they should learn doing it more, authentically true कि ये आवाज़ ऊपर तक पहुँच जाए. So I believe organizations do have code of conduct documents for everyone. So they should, I think, go through that document. So उसमें सब mention होता है कि for instance, if there are concerns, so don't go to HR. You have obviously different options कि आप किस तरीके से CEO को या different committees को जो है approach कर सकते हैं. So I believe कि सबसे पहले तो वो document सबको देखना चाहिए. Good. So the first learning is that people that where as should an be aware of, individuals they lack, that they don't know that the code of conduct is there, and they have to learn what is written in this. All right. Anything else if you want to add? It is similar to what Azim said, that any organization and every organization should have a grievance handling policy, right? And that grievance handling
Yeah, thank And you. grievance handling policy should contain the members from other department, not only from the HR department. And usually in our organization, it is clearly mentioned that, if the complaint is against the HR, so the HR would not sit in the investigation panel. Beautiful. Thank you for adding it. I really wanted it to, be part of discussion. कि बहुत सारे individuals, including, in HR teams, उन्हें ये नहीं पता होता कि जो leadership के साथ एक direct grievance का email है, वो क्या है, उन्हें कैसे reach out करना है, जिसके बीच में कोई HR का channel नहीं है, and they should know about it. Now, coming to Saad and towards the learning and development side particularly. आप जब लर्निंग एंड डेवलपमेंट में जितने इंटरवेंशंस करते होंगे, लोग फीडबैक्स देते हैं, और वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होता है टू गेट द फीडबैक, राइट फीडबैक एंड टेकिंग द पल्स. When we hear good or bad things and talking about the tough things, right? How from the learning and development interventions we can take it, and we can include it in our policy, and we can make it as in a document that is the noise not being heard, और एटलीस्ट नीचे लेवल पर आ रही है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आ रही. जैसे शाजिया ने बात ऐड की ना कि उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है. आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, जिनके साथ जो मेरे पास हैरेसमेंट के केसेस आते हैं, वो मुझे सुनाई कभी भी मेरे रूम में नहीं दिए जाते. या वो नमाज रूम होगी, या वो वॉशरूम होगा, या वो लंच टेबल होगा. The first noise you get is not directly a formal document, and people do hesitate because they are afraid of losing job. So when it comes in the learning and development side and you hear things, how you take it, and then you make intervention out of it. We would love to learn. ओके सो ज़बरदस्त. देखिए, मैं KFC के पर्सपेक्टिव से आपसे बात करूँगा. सो इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है दैट यू मेक योर ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूसिव फर्स्ट टू क्रिएट दैट अवेयरनेस. सो फॉर इंस्टेंस मैं अगर आप KFC की बात करूँ, so we believe in not only in gender diversification, but हमारे पास ऐसे लोग भी काम करते हैं जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, और उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है. सो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है, ये जो वो है, हम अपने लोगों को पहले इक्विप करते हैं. सो हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाने से पहले हम अपने लोगों को पहले उन चीज़ों के ऊपर डेवलप करते हैं, वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. क्योंकि हमारे वर्क प्लेसेस, ऑफिसेज अगर इंक्लूसिव होंगे, सो वो वेलकम करेंगे इस तरह के लोगों को. लेकिन अगर वो इंक्लूसिव, उनके अंदर वो अवेयरनेस ही नहीं है, अगर वो इस तरह के लोग आएंगे, लेट्स से अगर कोई फीमेल भी आती है, कोई डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉय भी आपको ज्वाइन करता है, सो वो सारी चीज़ें फेस कर सकता है. सो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ बेसिकली इफ़ यू वांट टू हैव अ डाइवर्स वर्क फोर्स, सो आई थिंक उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप वो अवेयरनेस क्रिएट करें विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. Yeah, and thank you for we do give the credit to KFC, and we हम खाने की टेबल पे भी अक्सर कैजुअल बात कर रहे होते हैं कि this is a very beautiful initiative KFC has taken, and to cater the part of the community who is otherwise be neglected very badly. So I'm sorry, यानी मैं सिर्फ एक चीज़, सो बेसिकली इट्स एंड टू एंड प्रोसेस. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं. सो KFC पाकिस्तान स्पॉन्सर दी स्कूल्स जहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते. सो द मोमेंट दे गेट ग्रेजुएट, जब वो अपना मैट्रिक जो भी अपना वो क्लियर करते हैं, सो वी प्रोवाइड देम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ एंड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल. सो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, हम उनको पढ़ाई में भी उनको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं. जब वो ग्रेजुएट करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं और वो काम भी करते हैं. और फिर सिर्फ काम भी नहीं करते, वी हैव, जैसे मैंने अर्लियर मेंशन किया था, सो वी हैव दी स्ट्रक्चर्ड करियर फ्रेमवर्क्स इवन फॉर दोज एम्प्लॉयज़ एज वेल. सो वी पार्टनर विद डेफ रीच, जहाँ पे डिफरेंट इंटरप्रेटर्स हमारे पास आते हैं जो कि इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, जो कि उनको ये समझाते हैं, जो उनकी ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं. beautiful. So it's an end-to-end process basically. And it's an entire vision and a thought you guys are carrying, and definitely it's very beautiful. Probably in the hustle bustle, बहुत organizations target oriented अगर हो जाएं तो वो ये miss कर देती हैं, which is equally a responsibility. Now the last round of the questions, and then we would love to hear from the audience too. Let's talk more about the technology side, and let's talk a bit about that, how AI is shaping the organization, and because of this increase in the technology, are we losing sentiment somewhere, or we are still we are still connecting more to the people and less to the technology? So पहला सवाल शाजिया से ये है कि टेक्नोलॉजी के लिए हमें कितना एज एन HR अपग्रेड करना है, नंबर 1.
अपने आप को कितना रेडी करना है टू सपोर्ट द बिजनेस, और दूसरा कि जब ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और जहाँ कम्युनिकेशन सबसे आसान है, तो क्या ये रिलेशनशिप्स पे, वर्क रिलेशनशिप्स पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, और अगर नहीं तो उसका पॉजिटिव टेक अवे लेना कैसे है? हाँ, थैंक यू। मैं एक सॉरी ऐड कर दूँ इस बात पे जो आपने सवाल किया था ना, जो स्पीकर, बिकॉज वी हैव रिसेंटली वर्कड ऑन दैट। तो व्हाट वी हैव डन कि अब तक जैसे वैल्यूज जगह जगह लिखी होती है, तो इट्स ऑलवेज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि उसके बारे में बात करें ताकि लोगों को पता हो। लाइक वाइज कोड ऑफ कंडक्ट भी ऐसे होता है, कोई डॉक्यूमेंट बना तो होता है, जब हायर हुए मे बी कंपनी में 15 साल गुजर गए, दोबारा देखा भी नहीं होता, तो वो ही हमें भी नीड महसूस हुई। तो व्हाट वी डिड मोस्ट रिसेंटली वी हैव डन, हमने प्रॉपर उसको रीलॉन्च किया काइंड ऑफ, ठीक है। उसका हमने नाम रखा GER, गवर्नेंस, एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज एडेड कॉन्शियसली कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें हमने 3 चीज़ें की हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट था, COI, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड थर्ड वाज स्पीकअप। उस पर मैं खाली बात करना चाही थी। तो आपने कहा, लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप CEO कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो वी हैड अ वेरी ओपन डिस्कशन विद द CEO कि ठीक है, स्पीकर हम चैनल तो बना रहे हैं, जो सेंट्रल ID होगी, बट वी हैड दिस अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, ये होगा डायरेक्टली इन एक्सेस टू द CEO एंड द कंपनी सेक्रेटरी, ही हैज़ टू असिस्ट हिम। अगर कोई HR की भी कंप्लेन आती है तो इट विल डायरेक्टली गो टू हिम, ठीक है। 3 चैनल आप बताते हैं, पहले अपने मैनेजर को कंप्लेन कर दें, मस्ताए को, किसी और सीनियर को करें, फिर आप HR, वरना चौथा होता है इस email ID पे चले जाएं, जो कि एक न्यूट्रल ID है। सो वी डिड दैट, और वो सबको पता होना चाहिए। अगर आपको कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पढ़ा, आई रिट्रीट टू डू दैट। और ऑर्गेनाइजेशन की भी जिम्मेदारी है कि वो यू नीड टू कीप ऑन रिफ्रेश करवाना ज़रूरी है, corporate announcements and everything to empower people. सो नाउ कमिंग बैक टू योर जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, तो टेक्नोलॉजी इज, सबसे पहला तो डिस्क्लेमर ये कि ह्यूमन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इट्स ऑलवेज दैट ह्यूमन कनेक्शन दैट यू कैन नेवर लूज। और हम लोग तो बिल्कुल HR से तो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन दैट वी शुड एवर वी शुड ऑलवेज ट्राई कि वो कनेक्शन हमेशा रहे। बिकॉज एक इंसान से बात करना, मैं तो AI वाले ऐड भी मुझे अट्रैक्ट नहीं करते तो आई थिंक वो नहीं हो, तो यू नीड टू ऑलवेज स्ट्राइक अ बैलेंस। हैविंग सेड दैट, टेक्नोलॉजी को आप नज़रबंद नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है। आपको यू नीड टू ओपन योर आइज एंड यू टू बी ऑलवेज। AI अब वो फ्यूचर नहीं रहा ना, AI इज स्टिल देयर। तो हम AI is present, it's not future, it's a present, right? So तो हमने छोटी छोटी एग्जांपल दे देती हूँ कि हमें लास्ट ईयर ये हुआ था कि व्हेन वी, ये हमारा टाइम जो होता है, हम ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं अपने पूरे साल का। तो फर्स्ट टाइम व्हाट वी डिड, वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी टुक सम बिजनेस अकाउंट्स एंड व्हाट वी डिड, हमने जो भी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते थे, तो हमने उनको वैलिडेट करवाया कि जी ग्लोबली हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे कैसे करती है, कौन से ऑब्जेक्टिव इसको स्टैंडर्डाइज पे कैसे लेके जाएंगे। तो 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 हमने उसको रेट किया कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कहाँ पर, हम कहाँ लूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक देयर वाज अ न्यूट्रल आई दैट एक्चुअली हेल्प्ड अस टू स्टैंडर्ड अप ourselves. वो आपको रीअश्योर करता है कि आप अच्छा क्या कर रहे हैं, तो वो भी ज़रूरी है। हाँ. वो आपको वो सिखाता भी है कि आपने इम्प्रूव क्या करना है, तो वो लर्निंग कर हो गया। और फिर क्योंकि वो मशीन है तो आप उससे बहस नहीं कर सकते कि यार आप गलत कह रहे हो, मैं ठीक कह रही हूँ। बिल्कुल। और इसका जो दूसरा पार्ट है, हम लोगों ने वी हैव रिसेंटली लाइक हमने बड़ा शिफ्ट लिया है। देयर इज़ अ टूल, इंटरनेशनल टूल हम लेकर आ रहे हैं, उसमें डेफिनेटली दैट्स बैक्ड बाय AI। उसमें बहुत आसानी है। बहरहाल देखिए, जितना हम लोग कहते हैं कि जी आप ChatGPT से काम कर लेते तो आपको अपने दिमाग से क्या, आपने क्या कुछ कोई कमाल तो नहीं किया। मेरी इस पे थॉट्स हैं कि भी दैट्स अ टूल दैट यू, अब ठीक है, हम पहले ज़माने में मैथ्स दिमाग से कर लेते थे, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो मेरी कॉम्पिटेंसी ख़राब तो नहीं हो गई ना। इट्स लाइक ठीक है, मे बी वो जो मैंने दिमाग बचाया मैं किसी और स्ट्रेटेजिक काम यूज़ कर लूँगी। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज दैट आप उससे कहते हैं ना सरफ नज़र नहीं कर सकते। वी ऑलवेज हैव टू हैव द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड वन। और वो उसका भी अक्सर बोर्ड, क्योंकि HR के एज ए कस्टोडियन आता है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मैं कहूँगी कि दैट बिकॉज उसकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए वी मस्ट हैव दैट। उसके फिर टूल्स डिफरेंट होते हैं कि आप मल्टी डेटा भी उसमें लेकर आए हैं, कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कितना फीडबैक उसमें आ रहा है। तो हमने भी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और लॉन्च भी कर रहे हैं, और उसके साथ मुझे लगता है एफिशिएंसी बहुत ऐड होती है आपकी। इफ दैट्स AI बैक, तो आपको जो पॉलिसी, ठीक है मुझे आती है पॉलिसी, मैं लेकिन ड्राफ्ट करने में टाइम क्यों लगाऊं? इफ आई हैव अ टूल, वो अगर उसको मुझे बना के दे देती है एंड दैट आल्सो वैलिडेट्स दैट कि वो इवैल्यूएट कर लेती है इंटरनेशनली क्या हो रहा है। yes, तो definitely, it's a good help. इग्नोर दैट। तो हम इसमें कोई आई थिंक दो राय नहीं है। वी need to have that technology at all level that we can, but वो human side needs to be there. Human side needs to be there. थोड़ा सा इस तरफ टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, and then we would love to hear the questions from the audience too. अच्छा, अभी जैसे ये बात करिए ना कि ऑफ कोर्स हम उसको रीवैलिडेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, वो हमसे कुछ सवाल भी करेगा, कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी बताएगा।
अब थोड़ा सा डेवलप साइड इस तरफ खेलते हैं कि चैट जीपीटी, जहाँ तक मेरा चैट जीपीटी के साथ एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत प्लीज़र है। यू नो वट एवर यू से, आप बोलें, आप उसमें यहाँ तक बोलें कि आई डोंट लव माई हस्बैंड, वो बोलेगा येस यू शुड नॉट, राइट? आप बोले सो यानी इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ येस फर्स्ट। सो आपको सबसे पहले वो काम करेगा एंड देन अपना इनपुट देगा। ये व्हेन आई प्लेड अराउंड आई एक्चुअली सर्च कि ये बहुत प्लीज़र है। अब यही चैट जीपीटी तो लीडर्स भी यूज़ कर रहे हैं ना, वो वैसे ही हमारी बहुत ज़्यादा उनको सुनना एक डिफ़िकल्टी लगता है, और फिर जब उनको इतना कुछ प्लीज़र मिल जाता है तो हम तो बहुत ही डेवलिश हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू दैट पार्ट, it is not yet a challenge, but it will become a challenge. Because when you get a yes from a machine all the time, then you start don't liking the people who say no. Yeah. Right? उस चैलेंज को रेडी रखने के लिए, और ये लाइन हर लाइन मैनेजर यूज़ कर रहा है, ये अब हर बच्चा यूज़ कर रहा है, एंड दे आर लर्निंग एंड ग्रूमिंग एंड एंजॉइंग इट। देयर द इश्यूज, द स्ट्रेस, द सेंटिमेंट्स, हाउ वी विल टेक इट। So there was a term garbage in, garbage out. ठीक है, so what we did is कि हमने लम्स की एक पूरी टीम जो है वो बुलाई, because prompt जो है वो इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा एक चीज़, जो एक टेक्निक है। अदरवाइज अगर आप उसको सही से प्रॉम्प्ट नहीं कर रहे तो वो आपको सही से नहीं बताएगा। जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट मेक करेंगे, इट विल मेक योर लाइफ इजी और सिंपल, जस्ट लाइक यू मेंशनिंग कि वो आपको यस में और सिंपल से जवाब दे रहा होगा। सो फर्दरमोर आपने क्वेश्चन पूछा था शाजिया से अबाउट विल AI replace human. So I was reading an article, काफ़ी मज़ेदार आर्टिकल था, जिसमें they mention ATM machines. So they mention कि ATM machines भी एक ज़माने में AI टूल ही था जो कि टेलर्स को मूव करने के लिए आई थी, बट वो अभी तक मूव नहीं हुए। बट सिंपल व्हाट हैपेंस इज कि ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स को थोड़ा सा टाइम मिल गया, बिजनेस को थोड़ा सा टाइम मिल गया, और उसको बेहतर करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल गया। सो दैट्स द thing I So think. the second part of the question where really I want to emphasize, it's the fair you cater कि replacement नहीं होगा, आदमी का human will always be there. I really want to learn more about it कि जो sentiments हैं, अभी भी HR के पास 50% अगर performance review, KPI, बाकी सारे इंटरवेंशन है, तो 50% लोगों की सेटलमेंट है। और व्हेन आई से सेटलमेंट, इट इज़ नॉट द अदर सेटलमेंट बट देयर इमोशनल साइकोलॉजिकल। तो हमारे रूम्स में जो आधे टाइम पे लोग आते हैं ना, वो सिर्फ टॉक आउट करने आते हैं, एंड व्हेन दे फील दैट वी लिसन टू देम, दे फील इजी, नो मैटर उनके मसले हल हो ना हो। लेकिन मेरा सीधा क्वेश्चन ये है कि जब आपके बॉसेस को, जो लीडर्स हैं, जो CEO सी टियर है, उन्हें आदत ही अब चैट जीपीटी से यस की है, आप चैट जीपीटी को कोई क्रेजी आइडिया बताएं कि मैं रॉकेट बना के आसमान पे उड़ना चाहूँ, वो बोलेगा यस यू कैन डू इट। दे नेवर स्टार्ट, चैट जीपीटी ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ यस। This yes is triggering your leadership as well. ये जो आई थी ना, जो शाजिया was adding कि यार उसमें vigilance भी रखना कि what is possible, what is not possible, इसकी क्या deadline हो सकती है, ये tough communication leaders को बार बार देना। Do you think कि आने वाले वक्त में ये और challenging हो जाएगा, उनका patience level कम हो जाएगा, वो हमसे और HR के साथ एक HR को अपना बिजनेस एक्यूमेंट फिर एक फाइनेंस की तरह देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर उनको समझाना और मुश्किल हो जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली आई वांट टू ऐड अप यू बोथ। I can add if you would like to. So I think it is difficult for the management to accept it, but I think ये बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट को ये समझना कि देखें वो एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको जवाब दे रहा है। सो देर आर मल्टीपल टच पॉइंट्स इन एनी आंसर और एनी प्रॉब्लम दैट वी आर लुकिंग अप फॉर दैट, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा, कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर HR टू be that devil's advocate over there, and ask the difficult questions, despite getting the pushback every time, but it is important। जैसे कहते हैं ना, कतरा रोज गिरेगा तो improvement so आएगी। it is important, so learning and development का रोल, यानी साथ जो ज़बरदस्त चीज़ें कर रहे हैं, जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं HR BPs के साथ, ये सारी चीज़ें हमें मजीद बढ़ानी पड़ेंगी ऑन द लीडरशिप साइड, टू बी मोर ऑन टू टच पॉइंट्स जो सेंटिमेंट्स के हैं वो वहाँ मिस ना हो। ऐसे अच्छा, मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये चेंज मैनेजमेंट है, और उसके अंदर बहुत दफ़ा ये प्रॉब्लम आती है कि जो सीनियर मैनेजमेंट वो ब्लंटली कह देते हैं कि ये जेन जी तो चैट जीपीटी से बना के दे देती है, राइट? उसका एक आर्ग्यूमेंट हमने उनको दिया था कि देखें, देयर वाज अ टाइम व्हेन यू पीपल यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी, एंड देन केम अ टाइम व्हेन एवरीवन हैड द गूगल, ई-बुक्स एंड गूगल एंड so
there is a change that is coming up. It is us that we have to adopt. How quickly we adopt, that depends on us. Yeah. Okay. Yeah, Okay. perfect. I can if to your question, तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है और ये बिल्कुल आपका बहुत ऑन स्पॉट क्वेश्चन है, बिकॉज आई ऑल्सो फेस द सेम थिंग. उसमें ज़रूरी, आई थिंक, दो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं. टफ HR के लिए बाहर बिल्कुल होता है, बिकॉज यू आर प्रपोजिंग समथिंग दैट इज़ लाइक बीइंग यू कैन से उसकी अपोज करके कुछ बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं जो कि आप अपनी चीज़ को वैलिडेट करना आपके लिए मुश्किल होता है. ठीक है, तो उसके लिए आई थिंक हमें वही अगैन इट्स वी दैट वी नीड टू बी ऑन टोज. बिकॉज मैं फिर इसके लिए क्या करती हूँ, मैं फिर लोकल सर्विस को रेफर करती हूँ, मैं लोकल मार्केट प्रैक्टिस को रेफर करती हूँ. यू रेफर योर कॉम्पिटिटर्स. आपको बहुत सारा ये एफर्ट करना पड़ता है जस्ट टू यू नो अगैन पुश. आई वुड एग्री व्हाट ही सेड कि आपको पुश बैक देना पड़ता है. हाँ, आप थोड़ा टाइम लेते हैं, यू डू योर थिंग्स एंड देन यू गो बैक. तो ये एग्जैक्टली ऐसे होता है कि जब आप कोई चीज़ प्रपोज करें, मे बी उन्होंने कोई चीज़ स्टडी कर लिया एंड दे से कि जी एग्जैक्टली ऐसे बस होगा, अब ये यही चाहिए. अब यही चाहिए. तो और लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है, मुझे लगता है कि जो उसका जो स्मार्ट तरीके का वो भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि बिकॉज ChatGPT को जब आप जाके उसकी सेटिंग करते हैं ना, तो यू सेट की क्रिटिकल चाहिए मुझे, वो पूरी टोन सेट कर यानी सकते हैं. हैक कर लें अपने बॉसेस का ChatGPT. नहीं, उनको सिखाएं. यू नीड द प्रॉम्प्ट लाइक आप वो पूरा सेटअप बनाते हैं एज ए ही वांट्स. आप जगह सेटअप में जाएंगे ना, वो आपसे पूछेगा आपको किस तरह का आंसर चाहिए, किस तरह की टोन चाहिए. इफ़ यू वांट क्रिटिकल थिंग, यू वांट टू बी लाइक रिजिड, यू वांट टू बी सॉफ्ट, यू वांट व्हाट. सो उनको ही पता होना चाहिए कि भाई मैं जो जवाब मांग रहा हूँ जरूरी नहीं कि एज ए प्लीजर ही हमेशा सही है. नहीं, मुझे आइडिया आ गया. IT से दोस्ती करके हैक करना है बस. Right? वो कर ले तो फिर वो तो बेस्ट बताइएगा नहीं किसी को. फिर वो आपको बार बार लगेगा कि आपने ये पॉलिसी बनाई थी और आप ही को ये लिफ्ट करना है क्योंकि ये आप ही ने बनाई थी. तो वो द ChatGPT would be giving the answers. HR could not otherwise. जब कर लोगे तो किसी को बताना नहीं. All right, so it's really beautiful, and we would love to hear. We have amazing audience. I can see beautiful faces, and we would love to hear if there are any questions or comments, because it otherwise be very incomplete, the discussion. Yeah. कोई भी सवाल. Yeah. माइक चाहिए. Assalamu alaikum. I'm Nagin. I'm an executive coach and trainer. So this discussion exactly ties in with what I do, and I just wanted to ask you. You had mentioned that people in senior management roles who are millennials, perhaps mostly, cannot. Do not know how to navigate the situation in which they're dealing with Gen Zs. How much do you think those senior managers are aware that they lack this confidence and this skill to, go through these or navigate through these situations? How much do you think they are aware? I think You I want to think add that's something? the challenge. हमें ज़्यादातर हम अवेयर नहीं होते हैं. हमें आई थिंक वो जो एग्जांपल आप में थे, एंड आई वाज मैं उनसे इम्प्रेस हुई हूँ उस हिसाब से जो आपके पास आके उन्होंने तैयारी की कि भाई वो जाएंगे, डिस्कशन कैसे करना Yes, चाहिए. yes. वो उस मोमेंट तक पहुँचने के लिए अवेयरनेस नहीं होती, जनरली नहीं होती. हाँ, नहीं होती. नगीन, मैं आपको बात ऐड करूं. हमने बचपन में सुना है, आई डोंट नो, हम जिस तरह बड़े होने, शायद हम अपने बच्चों को वैसे नहीं ट्रीट करते कि यार हमें सिखा रहे हो, अब अपने माँ बाप को सिखाओगे, यार अब अपनी खाला को सिखाओगे, अब अपनी, ये जो बहुत डायलॉग जो पहले बहुत सुना जाता था, नाउ इट इज़ गेटिंग, सो प्रोबेबली इट इज़ ऑल्सो द रेडीनेस, इट इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो जिस इन्वायरमेंट से हम एक्सपोज्ड हैं, हमारे लीडर्स भी उस तरह एक्सपोज्ड हैं, बट फॉर श्योर यू हैव टू टेक योर ईगो डाउन टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू लर्न समथिंग, एंड दैट हैपन्स फॉर ईच वन ऑफ अस. तो मेरे लिए मतलब मेरा अपने लिए और जो लोग मुझसे बात करते हैं, मेरा बहुत थंब रूल ये है कि नो मैटर, इस दुनिया से बादशाह भी गए और कुछ नहीं हिला. इंसान जो है ना, वो सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन बिग पिक्चर में ना देयर इज़ नॉट अ बिग थिंग कि इट विल मूव अवे इफ़ यू आर नॉट देयर. बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू मेक दैट बिग इम्पैक्ट, तो सबसे पहले आपने जिस चीज़ को साइड करना है ना, वो अपनी सेल्फ ईगो ही है. फिर डेफिनेटली वो आप सारा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे. और ये हम सब के लिए भी जो इस रूम में बैठे ना वैलिड है. हमसे जब भी कोई शख्स बात करता है ना, तो वो अपने लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, हमारे लिए कम. और ये नेचुरल
human psychology है. When we start behaving and believing in the same, that your bosses are talking to you for themselves, your kids are talking to you for themselves, your husband, your spouses and everybody else, तो फिर आप genuine interest show करना शुरू करते हैं. And when you are investing yourself in them, they start investing back in you. Yeah. So for sure, but again, you cannot change any person else, but you can change yourself. That is my, that is my learning from my life. So probably it is helping me. So instead of कि वो उनको बताएगा कौन, उनको कोई नहीं बताएगा. उन्हें समझ आना होगा तो अपने वक्त पे आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा. That is not my fight. My fight is in my capacity how I can learn to mold this person. Or if it is not my right stakeholder, who else in the room is my right stakeholder? So maybe I will leave her, but I will pick him. क्योंकि आपका agenda battle, one of the leaders says something very good I loved and I learned it, कि जब मैं उनके पास कोई complaint लेके या अपना stress लेके जाती थी तो वो मुझे बहुत आराम से एक बात कहते थे, every battle is not to win. Pick your battles very wisely. So probably आपका ego बीच में आ रहा है कि शाजिया मेरी बात नहीं समझ रही और कुछ भी करके मुझे इन्हीं से इनको let down करना है. तो task पीछे रह गया, इंसान आगे आ गया. That is what, so in my all capacity, my fight is not them, my fight is me. Simple. Nice. Thank you. Yeah, anything else? Talking about AI, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि बाय 2030 82 to 90 million people will lose their jobs, but parallel to that in the similar period 170 million people will get new jobs if they will geared up with those tools which have been introduced. So it's just a matter of time now, just 3 years left. What kind of tools and regulation HR should adopt so we can find those 170 million people who would be best fit for the organization? Okay, so I would like to answer that. That it is. We were having a discussion previously on this topic as well. That it is really important for the HR department to itself stay relevant and make the organization know the importance of staying relevant. That might be related to the AI or anything else. It's important to stay relevant, and that also includes that we build that competencies, that skills in the people of our organization that would enable them to work with the modern tools and practices. Yeah. So just like Saad also mentioned, that different organizations are searching for different future skill sets. So different organizations are searching for future skill sets so that they are prepared for that time. Yeah. But I really want to add one thing here. एक चीज़ जो आपका question है ना वो बहुत on spot है, right? Again, whatever the life we have lived by now, that has been lived. What is left, we have to prepare for it. Simple is the case. तो मेरी ना सारे youngsters को एक बात जो पहला hard fact है कि बहुत सारी jobs AI की वजह से रिप्लेस होंगी. इसमें कोई और साइड नहीं है, बट येस इट इज़ अ येस आंसर. लेकिन किसी भी इंडिविजुअल को रिलीफ देने के लिए जब आपके पास कोई बच्चा आता है जिसके पास जॉब नहीं है, या कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, तो वन थिंग द कामिंग सेंटेंस दैट हेल्प्स मी एंड मेनी मोर कि आपको एक जॉब चाहिए. दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी मार्केट है, एक जॉब तो मिल ही जाएगी. So number one, whatever skills Allah has given you by now and you are working on it, for sure you will ending up getting a job. But for sure you have to learn new things if you want to graduate from one level to other. Now on that part, one thing is companies, हम बात कर रहे हैं अगर companies की, तो companies ने आपको उस skill set पे job दिया जो आपने उसको offer किया at the time of interview. लेकिन अगर अब कंपनी ग्रो कर गई और आप वहाँ रह गए तो देयर इज़ अ पोटेंशियल पॉसिबिलिटी कि इररिलेवेंट आप होंगे, राइट? क्योंकि कंपनी की तो ग्रोथ हो गई ना, वो तो ग्रेजुएट कर गई. अब हमारी एक, sorry for my words, but what I hear, I started questioning this thought कि हमें क्यों लगता है कि सब कुछ कंपनी ने ही हमें सिखाना है.
Totally. My honest question to every single individual and to my own self. कहा ये जाता है, दुनिया में लीडर्स ने ये कहा कि अगर आपको बढ़ना है तो अपनी सैलरी का 5% खुद पे इन्वेस्ट करो. और जब ये 5% इन्वेस्टमेंट की बात है ना, तो इसमें आपके जिम से लेकर वो बुक्स आती हैं, वो ट्रैवल आता है, वो हर चीज़ आती है जो आपको अपने विजन को ग्रेजुएट करने में हेल्प दे रही है. So the first question is that who will take the responsibility? It won't be anyone but you, number one. लेकिन responsibility ले ली, अब करना क्या है नहीं पता. Again, go to ChatGPT, ask what you don't know. Right? I do ask it many times. मैं उससे पूछती हूँ कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कुछ, तो मुझे बताओ कि मुझे क्या नहीं पता. वो आपको 100 चीज़ें दे देगा, उसमें से 2 चीज़ों में आपका अट्रैक्शन जाएगा, बस वही आपका गाइडिंग पाथ है. फिर वो कौन सा इंस्टीट्यूट करा रहा है, कौन से कंट्री में हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, आपका पॉकेट साइज़ कितना है, साथ में कितने लोग कर रहे हैं, आपको वो जवाब मिलते चले जाएंगे. सो प्रोबेबली दिस इज दी. सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, यू आर वेरी राइट. आप यहाँ तक जब आ जाते हैं, इसके बाद आई थिंक जो हम अक्सर लॉस्ट हो जाते हैं, और आई थिंक जिसकी वजह से मैंने आम तौर पे भी देखा है, जो लोग हम बात कर रहे हैं कि बर्नआउट हो रहा है, या जिसकी वजह से लोग इकोनॉमिकल प्रेशर्स भी हैं या जॉब नहीं मिल रही है, चैलेंजेस में होते हैं, तो उसमें हमें एक टाइम किसी की लाइफ में भी आ जाता है जहाँ उनको लगता है कि मे बी देयर इज नो अदर वे, लाइक ज़िंदगी में शायद कोई रास्ता ही नहीं है हमारे लिए, हम तो बिल्कुल बेकार हो गए. डार्क स्पॉट. या हाँ, तो डार्क स्पॉट. तो उस डार्क स्पॉट से निकलने के लिए एक बहुत चीज़ मैंने भी देखा है और सुना भी है, वो एक काम करती है, यू नीड टू चेंज योर सर्कल. आपको अपना सर्कल चेंज करना है. जिस भी एटमॉस्फेयर में, चलो सबसे आसान काम है, मे बी आपको शायद थोड़ा किराया लगा के कहीं जाना पड़ेगा, मे बी किसी गैदरिंग में जाना पड़ेगा, मे बी किसी और सर्कल में, बट उसमें कोई वैसी कोई बड़ी स्पेंड आपको कोई स्पेंड नहीं करना पड़ेगा. पहली चीज़ ये करें कि उस सर्कल को चेंज करने की कोशिश करें जिसमें आप हैं. जब उसमें आप आ जाते हैं तो उससे भी बहुत सारे रास्ते निकलते हैं. दैट कुड बी ChatGPT or many other things. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको अगेन ह्यूमन से कनेक्ट करूँगी. प्रोबेबली दिस इज़ वेरी क्लोज टू बीइंग अ लाइफ कोच. दिस इज़ आल्सो वेरी क्लोज टू माय हार्ट दिस साइड. एक चीज़ है जो मैं सब जो यहाँ बैठे हुए, आई होप इट बिकम्स द टेक अवे ऑफ देम, कि जंग से पहले होती है जंग की तैयारी. जंग में सिर्फ जंग होती है. तो व्हेन यू आर इन योर डार्क स्पॉट ना, व्हेन यू आर एब्सोल्युटली लो इन योर लाइफ, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, वो जंग का मैदान है. उस वक्त आपको खुद से उठ के फाइट करने में ट्रिपल ऑफ द टाइम एफर्ट लगेगी. अब यहाँ पे मेरा एक फॉर माई ओन लाइफ दिस इज़ द रूल एंड आई ट्राई टू लिव इट टिल माई डेथ, कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं. कहा जाता है कि आपसे आपकी रियाया का सवाल होगा. ये ऐसे ही नहीं कह दिया गया. और रियाया में वो नहीं है कि मैं बादशाह बनूंगी तभी. ये वो सारे लोग हैं जो मेरे आसपास मेरे कुलीग हैं. अब यहाँ पे एज एन सोसाइटी टेक द लीड. आपका कोई कुलीग है जो ग्रेजुअली बहुत खामोश रहने लगा है, बहुत डार्क बातें करने लगा है, उसकी बातों में डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है, उसको साइड लाइन लगाने से ज़्यादा उसे उस वक्त गले लगाने की ज़रूरत है. प्रोबेबली दिस इज़ वेयर वी ऑल लैक. आई नो हम सब के अपने बैटल्स हैं, आई नो हम सब के अपने गोल्स हैं, और हम सबको भागना है, और सबको लाइफ में सब कुछ चाहिए. बट इसी सब कुछ में हम सबसे पहले उन्हें धकेल देते हैं कि यार ये तो अब बहुत डिसअपॉइंट. प्रोबेबली उस वक्त उस शख्स को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. And that is the one thing you can offer. So for sure I add to the point what Shazia says कि if you start feeling कि यार मैं बहुत negative thoughts मेरे जहन में आ रही हैं, disappointments बढ़ रही हैं, सबसे पहले ये देखें कि आपके आसपास के लोग किस तरह की गुफ्तगू करते हैं. Because by that time probably you are in control. I am talking about the real dark spot कि जहाँ अब आपको realize ही नहीं हो रहा कि अब आप दलदल में जा चुके हैं. उस वक्त अगर ये शख्स कोई भी है आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास, आपके घर में, सबसे ज़्यादा अटेंशन उसको चाहिए. ये प्लीज़ मिस मत करें. और आई एम टेलिंग यू, आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर, व्हाट गोज़ अराउंड कम अराउंड. आप आज देंगे, आपको नहीं पता कि कहाँ से कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगी. सो या माय टू सेंस. थैंक यू सो मच. My name is Tanya. I am from JDOT. My question is to Mr. Saad. Because the kind of organization you are working, you have a very diversified people in your organization. So how to manage it? Because companies right now are, bringing a little diverse environment in their organization. So managing these people, it's very difficult these days. So the volume, the number that you are having at your outlets, so how you are managing them in terms of the grievances? Because training is something that we are aligning. But handle the grievances and their sensitivity, how you are ensuring that they are heard and the questions are being, at the right platform, they are managing it. All right, so
So from KFC context, yes, we have around 10,000 employees, so the number is huge, obviously. हम करते क्या? So every year we do this survey, which is called KFC Listens, right? So number one, through that survey, हमारे पास जो majority, जो जिसको हम grievance कह लें या कुछ भी कह लें, जो लोगों की वो होती है, तो उसके through हमारे पास आ जाती है. So we do that every year, and we pick top 3 area of opportunities, and we try to implement जो भी interventions हमने किए, just to हम उनको ख़त्म तो नहीं कर सकते, but definitely उनको हम कम करने के लिए. So that is one platform, KFC Listens. Every single year we do that. Beautiful. जो earlier आप लोगों ने ये mention किया था, second कि अगर HR से भी किसी को जैसे कोई problem है, so we have this Speak Up platform which is there and it is basically pasted in all the retail stores. In fact, अभी हमने recently एक application launch की है which is called Employee Experience application. So through that you can register your grievance. आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, right there from your mobile phone अगर आपको कोई problem हो रही है, so you can register that complaint और वो जो भी relevant लोग होते हैं उनके पास जाते हैं. So Speak Up is there. It's a mobile application actually. Through that you can put your grievance, and we have KFC Listens that we do every year. उसके अंदर भी हमारे पास different area of opportunities आती हैं, लोगों के grievance भी होते हैं, बहुत ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि आप कभी imagine भी नहीं कर सकते. But we always pick top 3 every year और हम फिर उनके action plans बनाते हैं और हम उसके बाद उसको implement करने की कोशिश करते हैं. Can you just add one thing? Yeah. I do understand what you have just said. I think my voice is- Okay, so considering the kind of people they are, the market opportunities for them are very low. So do you think they are very easily sharing their concerns that what they are facing? Because if I have any issue with my organization, so मैं बहुत bluntly बता दूँगी, because I know that I have lots of opportunities in the market. But considering these people, do you think that they are that open to you people to share their grievances on, I'm sure daily basis there are lots of things. I think So- she's talking about the special people. Especially able special, Especially able people that So- are in the especially able people. Okay. Yeah. Okay. जी बिल्कुल मैंने आपको बताया ना कि we have partnered with DeafReach. So we have interpreter, हमारे different resources and through that और हम monthly basis के ऊपर तो नहीं but quarterly basis के ऊपर हम उनसे connect भी कर रहे होते हैं. So in a closed group, let's say if we have 300 employees जो differently abled हैं, so we gather them. मुझे तो नहीं समझ आएगा कि वो क्या कह रहे हैं, but through interpreters, yes, we do listen to them as well. So जैसे मैंने आपको बताया कि it's not only that we provide employment opportunities, but we provide every kind of opportunities so that they can be heard as well as normal other employees. Yeah. Amazing, amazing. So Tanya, I just want to add one more thing. As a JDOT or different organizations, we are recently receiving certain letters from organizations as well, DPD. So what organizations should do, we should identify the positions where we can place them. So that will really help them to place those employees or accommodate those employees. Yeah. So thank you so very much. We are very on time, but the last question, because we have to end it up timely. All right, so two last questions. Okay, so we. मेरा क्वेश्चन मिस पर्टिकुलर सबसे ही है कि आप सबने बात की एआई पे, डेवलपमेंट पे, वैल्यू, लेकिन मेरे ख्याल में एक मिसिंग फैक्टर है, वो है सस्टेनेबिलिटी. कि 2030 के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक जो भी आप एक्सपोर्ट करो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे एफएमसीजी है, कि आप उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन से गुजरोगे तब जाके आपकी प्रोडक्ट वहाँ सेल हो, चाहे कोई यूरोप मार्केट है, यूएस XYZ कोई भी है. तो यहाँ पे HR का क्या रोल है एज ए पर्सन के वो से को कन्विंस करे, या क्या पॉलिसीज़ बनाए कि इस तरह हमारी प्रोडक्ट 2030 से पहले, या जो हमारे पास अपकमिंग एक चैलेंज आने वाला है उसको हम कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. As I'm heading HR and sustainability, I'll talk. I would love to answer it, but first hear from Shazia. अच्छा, एक चीज़ तो आई थिंक HR का काम तो बेसिकली इस तरह की इंश्योर कराना होता है कि आपके जो भी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन हो, फूड इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, बिकॉज वी आर ऑल्सो इनटू एक्सपोर्ट्स. तो हमें ये डेफिनेटली हमारा पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है जिसको हम GMP कह लें, या इसको हम डिफरेंट सर्टिफिकेशन हमने जब तक वो पास आउट नहीं होती हमारी प्रोडक्ट आगे जा ही नहीं सकती है. ठीक, वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स से हमें उसके बाद तो क्वेश्चन नहीं है. इवन आप एक्सपोर्ट नहीं भी करते हैं, पाकिस्तान में भी इफ यू आर डीलिंग विद द फूड इंडस्ट्री, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें. दूसरा हमने एक चीज़ अभी की है, वो हमने काइजन को मेजॉरिटी लोग जानते हैं, तो हमने इस बार काइजन को थोड़ा
लार्जर प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बहुत टीडियस तरीके से उसकी जॉब की है। सो HR कोलैबोरेटिंग विद दी टेक्निकल टेक ऑप्स के साथ मिलकर हमने किया है, जिसमें छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं ना कि आपने कहीं से जो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं कि Improvement मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए, 5S इसमें छोटे छोटे and हमने lean वो and yeah. रखे हैं कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वो करते करते इस तकरीबन को सम अप होके सो हमने एस्टिमेट किया है, वी आर जस्ट गोइंग टू लॉन्च दैट, इसकी सॉफ्ट लॉन्च है हमारी इंशाल्लाह इन अ वीक और सो। तो दैट वुड, वो आपकी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उसको हर समझने की जो एक वर्क स्टेशन लेवल है वहाँ पे भी जाके उसकी इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहा होता है, बट वो एक इम्प्रूवमेंट है ऑन टॉप ऑफ दैट द वे यू ऑपरेट। लेकिन अदरवाइज फूड इंडस्ट्री में होते हुए ऐसा हो नहीं सकता कि सर्टिफिकेशन के लिए आप सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर कर दें। All right. So, referring to the question you asked regarding the sustainability, मैं उसको बहुत, I mean, ऊँट को मैं डब्बे में बंद करने की कोशिश करूँगी in one line कि HR क्या कर सकता है। HR सबसे पहले तो sustainability को आम फहम कर सकता है, नंबर 1, राइट। वेयर वी लैक, हमें लगता है सस्टेनेबिलिटी, इस डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं, इनका काम है सस्टेनेबिलिटी पे काम करना, जबकि सस्टेनेबिलिटी में जो सारे इनिशिएटिव्स हैं, आप क्लाइमेट की बात करें, सोशल की बात करें, वो जाके गिरते प्रोडक्शन फ्लोर के लोगों के ऊपर ही हैं, क्योंकि वहीं से निकल रहा है सब कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल what the HR role is to make it in a translate it into simple language, so you should know why you don't have to take a print out, because it is wasting a paper, means it is cutting a tree, means it is taking the rain away, taking the information back to the simple people in their language. That is HR's role. Another HR role is to increase the interventions as much we are increasing for the culture drives. So जहाँ अभी जैसे साद ने बात की कि हम अच्छी वैल्यूज़ के ऊपर अवॉर्ड करते हैं, तो इट कुड बी वन ऑफ द कंपटीशन के जो डिपार्टमेंट सबसे कम प्रिंट आउट, जो सबसे कम प्रिंटिंग इंक यूज़ करेगा, उसके लिए ये अवार्ड है, kind of a thing. So these are the few things, and there are a lot more. Obviously it's another world, and exactly. So exactly. So उसके अंदर क्योंकि the forum is HR, but of course फिर आपके ये जो sustainability targets हैं, आप green chemicals और बाकी सारी चीज़ें कि आप कितना sea water में दे रहे हैं, उनको company targets में convert करना ही है. If you are not doing it, for sure आपका अपना business stake पे आएगा. वो हम करते हैं, उसके बगैर आप you cannot efficiently operate. So more you talk about it in the boardrooms, then it becomes AMFAM for them, and they start getting the strategies accordingly. Yeah. So for sure, yeah. The question. Assalamu alaikum. I'm from systems in L&D. सवाल आप लोगों से basically ये था, what I've seen a lot of the time is कि we promote people because of their individual performance, and as an individual performer you have to be very focused and very in yani tunnel vision type of thing, and then when people get promoted they have to get work done. जो communication की problems की जो आप बात कर रहे हैं, you have to get work done by other people. और वो चीज़ सीखी भी नहीं होती, यानी the thing that has got you there is being a very strong individual performer and perhaps not caring very much about what other people think and being technically very strong, and then when you get promoted then you need to communicate with the young person in the correct way and with the manager in the correct way and so on and so forth. Yeah. तो उसके लिए organizations को क्या करना चाहिए? I would love Saad to add up on it, because I know you would have a lot, and then Shazia if you want. Yes, so obviously देखिए हर role के लिए एक different skill set required होता है. So yes, competencies, skill set required होता है. So obviously if the individual is moving from as an individual contributor to a supervisory level, so definitely that individual needs a different skill set. So as an organization मेरे ख्याल में हमें proactive होना चाहिए rather than कि हम reactive हों. अगर मुझे पता है कि यार ये इस role में move हो रहा है, so that's my responsibility as HR कि मैं उसकी capability building करूँ उन चीज़ों के ऊपर या उन competencies के ऊपर जो कि उसको future में required होंगी. So मेरे ख्याल में तो ये that's the responsibility of the क्योंकि HR. ये बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें मेरा बहुत पेन पॉइंट है. तो ये जो मसला है ना पीपल स्किल का, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और ये एक बहुत बड़ी आपने जो बात की है ये बहुत बड़ा आई थिंक लार्जली लेस रेटेड एरिया है, इग्नोरेंट एरिया है, कि जहाँ पे जब हम पहली बार जो शख्स मैनेजर बनता है, जब वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिलती है, दैट इज़ समथिंग नीड टू बी लर्नड.
taught by the organization कह लें कुछ भी कह लें कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ ऐसे करीबन 10 साल पहले आई वाज पार्ट ऑफ द फार्मा ऑर्गेनाइजेशन तो हम वी हैड प्रमोटेड एग्जैक्टली ये हुआ था परफॉर्मर हाई परफॉर्मर लोगों को जोनल मैनेजर बना दिया था उसमें से हमारे जो 8 मैनेजर्स थे उनमें से 3 या 4 लोगों को वापस डिमोट करना पड़ा बिकॉज दे वर इंडिविजुअली लाइक टॉप परफॉर्मर रिकॉर्ड तो परफॉर्मेंस थी लेकिन लोगों को नहीं लीड करना आता था तो ये हम वैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये कर रही हूँ बिकॉज जो मैं कह रही हूँ मेरा पेन पॉइंट है कि व्हाट वी आर डूइंग कि हम ये बना रहे हैं हमने इंटरनल इन हाउस अपना एक मैनेजर टूल किट बनाया है जो कुछ यार मॉड्यूल्स बनाए और हम ये एम कर रहे हैं साल के हम जो भी शख्स पहली बार मैनेजर बनता है टेक्निकल थिंग साइड they need to learn कि ये लोगों से कैसे डील करना है अच्छा थैंक यू फॉर ऑल दी ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट मैं थोड़ा सा यानी अगर मैं आपकी जगह सोचूं तो मुझे ना ये सवाल सबसे पहले मेरे सवाल जहन में जो बात आती है ना व्हाट इज़ इन इट फॉर मी तो अगर मैं वो इंडिविजुअल हूँ फॉर एन एग्जांपल तो आज के लिए बहुत आसान है राइट आस्क ChatGPT वेयर आई डू लैक राइट एंड से कि मुझे ये कमेंट्स ट्रस्ट मी नॉट मुझे साथ बताएंगे ना कि एनी यू डोंट बिहेव गुड मैं इरिटेट हो सकती हूँ मुझे ChatGPT बोलेगा ना तो शायद मैं उसे ट्रस्ट करूँगी आप लिखें यानी इंडिविजुअल अब लिखें क्योंकि वी आर बिकमिंग लीडर्स इफ़ वी वांट टू टेक दैट पोजीशन आप लिखें कि ये कॉन्वर्सेशन हुई आई एम फीलिंग वेरी हीटेड इनसाइड मी आई एम वेरी एंग्री द पर्सन सेड दिस आई रिप्लाइड दिस द पर्सन सेड दिस आई रिप्लाइड conversate with the machine and said and take the inputs where do I lack what can I improve I even do it कि when I now go to the boardrooms उससे पहले मैं एक ChatGPT से conversation करती हूँ this is my boss personality that's how the person communicates I am going to pitch this idea it seems very tough please make me ready for it and I'm telling you it is helping me so if it can help me it can help you too it can help any other individual so make it basic try using now this machine this invention in some other ways but मेरा इस पे counter वो है कि like you have mashallah groomed like for like a couple of years now you realize that you need some kind of discussion the thing is जो pain area ना वो ये कि people don't know that they need to have this kind of conversation they need to learn it हम मैं सिर्फ एक बहुत सिंपल बात कहती हूँ कि जब आप मैनेजर बनते हैं कंपनी जनरली मैनेजर बनने के बाद गाड़ी मिलती है बेनिफिट मिलते हैं मैं कहती हूँ क्यों मिलते हैं यू आर द सेम वन आपको इतना फैसिलिटेट इसलिए किया जाता है नाउ यू आर द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द पीपल अंडर यू तो वो बहुत ज़रूरी है समझना लेकिन आई थिंक वो एट लार्ज हम जितने भी लोग कर सकें ये बहुत ज़रूरी है जब पहली बार पीपल मैनेजर बनते हैं तो मेरे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं लोगों की और ये हमने सुना है एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन वेरी ब्यूटी इसके ऊपर पूरा दिन डिस्कशन भी हो सकता है ट्रस्ट मी क्योंकि ये हम सुनते हैं ना कि यार इनको तो हमने सिखाया हमारी मैनेजर बन गई हुआ ना हम सब की लाइफ में ऐसा हुआ तो वो मेरे एक बॉस ने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया था व्हेन आई प्रोमोटेड टू अ सर्टेन लेवल वेयर माय टीम वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मी एज एन देयर लीड तो I went to the CEO room and I asked you know I think that person is not ready to take me as a leader so either make me ready or tell me what should I say because हर बात के बाद वो मुझे यही बात कहते हैं कि why you are taken as a manager तो he smiled and he said ask them कि जो तुम्हें जिस तरह जो तुम में नहीं है ना वही मुझ में है जो मैं बात करती हूँ शायद ये अगर आप सीख लेते तो आज आप ही लीड करते हैं सो नाउ वाई आई एम टेकिंग इट अप कि ये हेल्प जो हम अपने मेंटोर से लेते थे क्योंकि जब आप मैनेजर्स बन रहे हैं ना तो आपकी जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक डिमांड होती है और मैनेजर्स की डिमांड ये है कि उनकी बातचीत का तरीका दूसरों से कम अलग होना चाहिए why should people listen to you either you talk good you look good you behave good simple competence तो उनमें आप solution तो उन्हीं से मांगते हैं कि प्रॉब्लम हो गई है बताओ कैसे सॉल्व करना है Okay, so I would also like to add on the question. There are two things. देखिए organization का promotion का criteria क्या है? अगर वो उनका criteria ये है कि 3 साल पूरे हो गए और उसको promote करना है तो तो वो डेवलपमेंट वाली साइड पे रह जाएगी दूसरा ये कि हर एक आपका सक्सेशन प्लानिंग मैकेनिज्म कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है और आईडीपीज कितने क्लियरली कम्युनिकेटेड है दैट वुड रियली हेल्प तो जब तक आईडीपीज के अंदर से वो सारे चेक बॉक्सेस चेक नहीं हो जाते दैट इंक्लूड्स द लीडरशिप एंड द कॉम्पिटेंसीज ट्रेनिंग तो देन इट इज बेटर टू प्रमोट देम टू द नेक्स्ट लेवल पहले होना चाहिए जी वैसे भी जनरली I'm sorry, मैं सिर्फ इतना कमेंट करना चाहूँगा कि जनरली functional skills are very easy to learn. They're very easy. जो people skills होते हैं ना वो बहुत मुश्किल से so that's the most difficult thing I think.
इन जनरली अगर आप सोसाइटी में भी देखें तो जो लाइफ स्किल्स होते हैं वो आपको बहुत कम ही लोगों में नज़र आ रहे होते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू अगर आप किसी को कहेंगे यार एक्सेल सीख लो, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन सीख लो, सो मेरे ख्याल में वो 15 मिनट में सीख लेगा. बट व्हेन इट कम्स टू दीज लीडरशिप स्किल्स, लाइफ स्किल्स, I think that is something which is missing in general in our society. So ये लोग ही काम कर रहे होते हैं. We all are in the learning curve. Yeah, Exactly. definitely, I agree. So please, the last question, and definitely you raise your hand. So yeah. Thank you so much. So my name is Zahab Alvi, and I'm a founder of a consulting firm. I'm not from the HR background, but since I've started that firm, I'm pretty much into everything. So I'm feeling a little bit alien here. But when we are talking a lot about ChatGPTs and all these LLMs these days, right now my company is jumping into creating these kind of agents that will, as per you guys, will get the jobs for the people. Amazing. So I have a suggestion here. मैंने ये अभी काफ़ी सुना कि CEO जो है वो जिस तरह से उसकी searching होती है, that's too much pleasing. I would not agree. If you want to get pleased by a ChatGPT, then it will be a pleaser for you. It's all about how you train your GPT. And why don't we as an organization have prompt engineers hired and create an agent for every specific department? So for example, अगर HR की एक team है पूरी and HR का department है, there should be a prompt engineer who should create an agent specifically for HR. अगर कोई भी HR का बंदा उससे कोई question करे, that agent can give an answer as per, and it can give you a pushback as well if the question is wrong. So that's basically not a question, but it's a suggestion. It's a beautiful addition. Thank you for adding this amazing thing, and very wish you best of luck. You are a young entrepreneur, and I would love, see you growing, glowing, inshallah. So thank you everybody in the room. Thank you People's Perfect. Thank you Tech Titan. Thank you everyone to be here. Without you, it was really very incomplete. And for sure, my great panelists. Without you guys, the wisdom would have been, taken half off. So thank you so very much, and yeah, Thank you. meet often.